وزیر اعظم نواز شریف آج افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں موٹر وے M9 کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ، جناب مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، جناب لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل DGFW، جناب شاہد اشرف تارڑ صاحب چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جناب جنرل شاہد بیگ مرزا صاحب کمانڈر 5 کور، معزز ممبران پارلیمنٹ و سندھ اسمبلی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تعمیر وطن کے سفر میں آج ہم ایک نیا سنگ میل عبور کرنے جا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی اور ہم اس پاک سرزمین پر نئے راستوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، راستہ منزل کا پتہ دیتا ہے۔ راستے مشکل ہوں تو منزل تک رسائی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر منزل تک پہنچنا ہے تو پہلے راستوں کو آسان بنانا ہوگا۔ اگر وطن کی تعمیر ہماری منزل ہے تو پھر موٹر ویز ہماری ناگزیر ضرورت ہیں۔ انہی پر چل کر ترقی کا سفر طے ہوگا۔ یہی وہ شریانے ہیں جن میں معیشت کا خون گردش کرتا ہے۔ لوگ قریب آتے ہیں، فاصلے کم ہوتے ہیں۔ ہماری منزل تعمیر وطن کے ذریعے قومی یکجہتی کا فروغ ہے۔ جب کراچی سے پشاور تک موٹر وے بنے گی تو عوام میں فاصلے کم ہوں گے، ایک طرف تجارتی قافلے رواں دواں ہوں گے اور دوسری طرف پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ 60% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ پل بن رہے ہیں، انٹرچینج تعمیر ہو رہے ہیں، سروس روڈز پر کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ملتان سے سکھر تک موٹر وے کی تعمیر بھی جاری ہے۔ آج لوگ اپنی آنکھوں سے ایک نیا پاکستان تعمیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اس خواب کو تعبیر دی ہے۔ موٹر ویز، میٹروز اب خیالی باتیں نہیں رہیں، یہ وہ وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ ہم نے 2013 میں عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ 2018 تک تمام وعدے پورے ہوں گے۔ تعمیر ایک ویژن کا تقاضا کرتی ہے، قوم کی تعمیر کھیل نہیں۔ اس کے لیے ویژن، جذبہ، قوت کار اور عوام سے محبت ضروری ہے۔ ہم نے اسی زاد راہ کے ساتھ 3 سال پہلے تعمیر پاکستان کے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ معیشت کی زبوں حالی ہمارے سامنے تھی، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، نوجوانوں کے پاس تعلیم تھی مگر روزگار نہیں تھا، ہنر تھا مگر اس کا خریدار کوئی نہیں تھا۔
ऐसे नौजवानों के जज्बात से खेलना आसान होता है, उन्हें गुमराह किया जा सकता है। इस मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने मफादात के लिए कभी मजहब और कभी सियासत के नाम पर नौजवानों में हैजान पैदा करते हैं, उनके अखलाक को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अवाम जानते हैं कि ये लोग नौजवानों से भी मुखलिस नहीं, कौम से मुखलिस नहीं। हमें अपनी नई नस्ल को ऐसे अनासर से बचाना है, इसके लिए मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना नागुज़ीर है। जब मईशत अपने पांव पर खड़ी हो जाती है तो फिर मुआशी सरगर्मियों में यकीनन तेजी आती है, तजारत होती है और नए रोजगार पैदा होते हैं। नौजवानों को मुलाजमतें और काम मिलता है, फिर उन नौजवानों का एहतसाल करना मुश्किल हो जाता है। हमने दिन रात एक करके मईशत को मजबूत करने की कोशिश की। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मईशत अपने पांव पर खड़ी हो रही है, सारी दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को उभरती हुई मईशतों में शुमार कर रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि 3 साल की हमारी मेहनत का समर माशाअल्लाह कौम के सामने आ रहा है। मईशत में इस्तेकाम और तेजी के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की उसने सबसे पहले अपने इंफ्रा की तामीर की। तुर्की की मिसाल ले लीजिए और मलेशिया की मिसाल ले लीजिए। जदीद मुस्लिम दुनिया में तरक्की के ये 2 मॉडल हैं और शायद आज तीसरा पाकिस्तान भी इसमें शुमार होता अगर पाकिस्तान के उस मोमेंटम को रोका ना जाता जो कि 1990s में हमने शुरू किया था, जिसकी बुनियाद हमने 1991 में रखी थी। और फिर आप जानते हैं कि मोटरवेज बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, अब मेट्रोज भी चलाई हैं। इसके बाद अब सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान का माशाल्लाह रुख करना शुरू कर चुके हैं और आज तामीर का ये सफ़र कई संगे आए मील अबूर कर चुका है। आला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन तामीरी सरगर्मियों ने रोज़गार के बहुत से मौके पैदा कर दिए हैं। मोटरवेज के साथ साथ CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अजीमुशान मंसूबा कई मराहिल तय कर चुका है। इससे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है और लाखों को इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मिलेगा। आज दुनिया एक नया पाकिस्तान देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक उभरता हुआ पाकिस्तान। अभी तो आपने देखा यहाँ पे इस वीडियो पर कि इस सेक्शन पे क्या सरगर्मियाँ जो है इस वक्त चल रही हैं और कहीं मोटरवे बन रहा है, कहीं ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं और फिर जो है वो मोटरवे जो है वो बिल्कुल आलमी स्टैंडर्ड की मोटरवे बन रही है। इसके लिए मैं यकीनन जनरल अफजल को भी और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो तेज़ी से इसकी तामीर कर रहे हैं, तेज़ी के साथ। और इंशाअल्लाह जैसे कि आपको बताया है कि ये मोटरवे अल्लाह के फजल करम से इस साल के यानी चंद महीनों के बाद मुकम्मल हो जाएगी। और आज मैं कराची से यहाँ पे आया हूँ हेलीकॉप्टर से। पूरा रास्ता मैंने इस मोटरवे को हेलीकॉप्टर से देखा है। हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग कर रहा था और मेरे दाएं साइड पे मोटरवे थी, हम मोटरवे के बाएं साइड पे उड़ रहे थे और एक एक चप्पे को मैंने मोटरवे को देखा है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये भी मोटरवे पाकिस्तान की किसी भी मोटरवे से ये कम नहीं होगी, बल्कि इंशाअल्लाह उससे भी ज़्यादा बेहतर होगी। ख़वातीनों हज़रात, आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़कों की क्या ज़रूरत है। हाँ, चार्टर तैयारों पर उड़ने वालों को सड़कों की ज़रूरत नहीं है, मगर इस मुल्क के अवाम को इसकी ज़रूरत है।
उन लाखों पख्तूनों को इसकी ज़रूरत है जो रोज़गार के लिए कराची रहते हैं मगर अपने प्यारों से राब्ता भी कायम रखना चाहते हैं। उनसे पूछें कि इस मोटरवे की क्या कदर व कीमत है। बलूचिस्तान के उन गरीब लोगों को सड़कों की ज़रूरत है जो बीमार हो जाएं तो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकते। इन सड़कों की पंजाब के उन किसानों को भी ज़रूरत है जिन्हें अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाना है। इन सड़कों की सिंध के अंदर मजदूरों को भी ज़रूरत है, किसानों को भी ज़रूरत है। गाँव से रोज़गार की तलाश में हर रोज़ शहरों का रुख करते हैं। इन सड़कों की उन तालिब इल्मों को भी ज़रूरत है जिन्हें सुबह सवेरे तालीमी इदारों तक पहुंचना होता है और जो हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं या हेलीकॉप्टरों पर सैरें करते हैं, वो कभी ज़मीन पर उतर कर देखे तो सही कि अवाम के लिए सड़कों की क्या अहमियत है। वो कभी नहीं समझ सकते कि अवाम को मेट्रो की क्या ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने मेट्रो को जंगला बस कह दिया। और सड़कों की अहमियत समझने के लिए कुछ विजन चाहिए होता है, इसके लिए अवाम से ताल्लुक़ चाहिए होता है। और अभी आपको बता रहे थे DGFWO भी और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी आपको बता रहे थे कि अब ये सड़क कराची से शुरू हो चुकी है, हैदराबाद पहुंचने वाली है मोटरवे। इसके दोनों साइडों पे प्लांटेशन हो रही है। इसकी साइनेज जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। यहाँ पर भी रेस्ट एरियाज बनेंगे इंशाल्लाह। ज़मीन का मसला था लेकिन उस पर भी काम जल्द शुरू हो रहा है। और आप कराची से कोई अगर हैदराबाद सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र भी करें। अगर पिकनिक के तौर पे आना चाहते हैं तो आएँ, किसी रेस्ट एरियाज में आके चाय पिए, खाना खाएं, फिर कराची वापस चले जाएं। हैदराबाद वाले आएँ, चाय पिए, फिर हैदराबाद वापस चले जाएं। अब ये रुकेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये जो मोटरवे है ये अब हैदराबाद जब पहुंचेगी तो उससे पहले जैसे कि अभी बताया चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि हैदराबाद जब ये पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह फिर ये आगे सखर जाएगी और 6 लेन मोटरवे सखर जाएगी, जिसका अभी इंशाअल्लाह चंद महीनों में उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। और फिर सखर से मुल्तान इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पे तामीर शुरू हो चुकी है। आगे मुल्तान से लाहौर तामीर शुरू हो चुकी है और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अगले 2 से 3 सालों में ये तमाम मोटरवेज मुकम्मल हो जाएंगी। हमने इसकी बुनियाद रखी है और इंशाअल्लाह 2019 तक इंशाअल्लाह ये मोटरवेज मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले भी साथ साथ होती रहेंगी, उससे पहले भी हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारा हिस्सा इसका जो है वो इससे पहले हो जाएगा, लेकिन 2019 तक ये कराची से पेशावर तक आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक 6 लेन बड़ी खूबसूरत मोटरवे मौजूद होगी। और आप जो जहाज़ों से जाते हैं आजकल देखें, आप इस सड़क पर ट्रैफिक तो ज़रा देखें कितनी ट्रैफिक है, लेकिन मोटरवे आज पहली दफ़ा बन रही है। भाई अगर 1990 के अंदर जैसे मैंने पहले कहा है उस काम को जारी रखा जाता जो हमने शुरू किया था 1990s में, जिसकी 1991 में बुनियाद रखी थी, आज न सिर्फ कराची पेशावर तक मोटरवे पाकिस्तान के अंदर होती बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे में चप्पे चप्पे पे मोटरवे होती। आपको ये भी याद होगा कि उस ज़माने में कराची से गवादर तक हमने एक हाईवे बनाई थी। ये 1997 की बात है जब दोबारा हमारी हुकूमत आई। कराची से गवादर हमने एक हाईवे बनाई जो कि बाद में फिर तूफ़ान आया, बारिशें हुई और फिर वहाँ फ्लड्स आए, जिसकी वजह से वो टूट फूट गई और उसको शायद बहुत अच्छी तरह से रिपेयर भी नहीं किया गया। अब तो वहाँ पर बलूचिस्तान में एक यानी ज़बरदस्त किस्म के हाईवेज और वहाँ पर ये एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। अभी गवादर से आप कोयटा जा सकते हैं हाईवे पे, और जो हाईवे ऐसी थी पहले, जो सड़क थी कि 2 दिन में भी पहुंचना मुश्किल होता था कोयटा से गवादर, आज सुबह आप नाश्ता करें गवादर, दोपहर का खाना आप जाके तो कोयटा में खा सकते हैं। और एक
ایک عظیم الشان سلسلہ سڑکوں کا جو ہے وہ بن رہا ہے وہاں پہ بلوچستان میں. بلوچستان جبکہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی, آج سب سے زیادہ توجہ اللہ کے فضل و کرم سے کمیونیکیشن میں, انفراسٹرکچر میں آج بلوچستان پہ دی جا رہی ہے. گوادر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پورٹ بننے جا رہا ہے, اور گوادر کے اندر جو ہے وہ ہم ایک اس کو اپنا بہترین پورٹ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو پچھلے 3 سالوں میں سرگرمیاں رہی ہیں اس پہ کتنی توجہ رہی ہے گوادر پہ ہماری, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل جو بلوچستان ہے اس کی تبدیلی پوری دنیا کو نظر آنی چاہیے, اور جو کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہونے جا رہی ہے. بلوچستان KPK سے مل رہا ہے ڈائریکٹلی ہائی ویز کے ذریعے سے, اور پھر بلوچستان ادھر سندھ سے مل رہا ہے, بلوچستان ڈیرہ غازی خان کے ذریعے سے پنجاب سے مل رہا ہے, اور پھر بلوچستان جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک اس کے اندر ایک بہت تیزی کے ساتھ ترقی کا ایک پورا پلان بن چکا ہے. گوادر جب ہماری ایک دوسری پورٹ بنے گی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گوادر سیدھا کنیکٹ ہوگا چائنا کے ساتھ. اور یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو KPK کہا ہے تو KPK سے آگے گلگت بلتستان ہے, تو گوادر گلگت بلتستان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے, اور پھر چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت اچھی ہائی وے کے ذریعے سے کنیکٹ ہوگا. ہم سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. یہ کنیکٹیوٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو 10 ممالک ہیں سینٹرل ایشیا میں جن کی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ECO کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے, وہ سب ملک انشاءاللہ گوادر کے اس پورٹ کو استعمال کریں گے اپنے امپورٹس کے لیے بھی, اپنی ایکسپورٹس کے لیے بھی, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس ملک کے اندر. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سارے کام جو ہے مکمل ہو رہے ہیں. ابھی یہاں پر چیف منسٹر صاحب نے بھی, مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور پھر میں نے اس کا مشورہ کیا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین سے. تو یہ ابھی جام شورو سے 7 جو 126 کلومیٹر کی جو ہائی وے ہوگی اس کی ڈیولائزیشن ہم اس کو ڈیولائز کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہترین ہائی وے میں منتقل ہوگی جس کو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ اس کو تعمیر کریں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے, اور جس پہ کہ ہم انشاءاللہ جلدی سے عمل کرنے والے ہیں. یہ صرف سڑکوں کی نہیں بات یہاں پر, اور موٹر ویز سندھ میں بھی بن رہے ہیں, موٹر ویز KPK میں بھی بن رہے ہیں, موٹر ویز پنجاب کے اندر بھی بن رہے ہیں, اور موٹر ویز بلوچستان میں بھی بن رہے ہیں. اور ابھی یہ تو ابھی سڑکوں کی بات کریں, اس کے علاوہ بے شمار اور سڑکیں بن رہی ہیں. موٹر ویز تو 6 لین موٹر ویز ہیں, لیکن جو ہائی ویز ہیں جو 4 لین ہیں وہ تو بے شمار بن رہی ہیں پاکستان کے اندر. ایک نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بجلی ہے وہ بجلی بھی ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان دوبارہ واپس آ رہی ہے. چلی گئی تھی, روٹ کر چلی گئی تھی بجلی پاکستان سے, پتہ نہیں کیوں ہم نے اس کو دھکا دیا یا کیا ہوا, لیکن بجلی پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کہ بجلی پاکستان میں نہیں تھی, اور اس کو ہم واپس لائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور واپس آ رہی ہے. 2018 تک انشاءاللہ مکمل طور کے اوپر پاکستان واپس آ جائے گی بجلی, اور پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی. 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم سسٹم میں اس سال اور اگلے سال کے شروع تک شامل کریں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے چند اور سالوں میں یہ جو 10,000 کی فگر 30,000 تک پہنچ جائے گی. ہمیں تو آگے کا سوچنا ہے, آج کا نہیں. ہم وہ لوگ نہیں جو ماضی میں رہتے ہیں, ہم نے تو آگے کا سوچنا ہے کہ آج اگر آج بجلی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اگلے 10 سال میں, 20 سال میں, 50 سال میں کتنی ہوگی. ابھی ہم اپنا یہاں پہ کوئلے کے کارخانے بنا رہے ہیں جو کوئلے سے بجلی بنائے گی.
यहाँ पर LNG गैस से बिजली बनाने वाले कारखाने बना रहे हैं और बहुत कम रेट पे हम बना रहे हैं उनको, जो शायद पहले दुगने रेट पे बनते होंगे, आज आधी कीमत पे बन रहे हैं। हम यहाँ पर जो है वो सोलर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, हम विंड मिल्स यहाँ पे बना रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पे ये सिंध के साहिल पे जो है वो थट्टा के इलाके में बन रही हैं। और इस पाकिस्तान में हम हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अभी इंशाल्लाह भाषा डैम है, जो भाषा डैम ना सिर्फ 4500 मेगावाट बिजली फराहम करेगा, भाषा डैम एक बहुत बड़ा डैम भी होगा जो पाकिस्तान के काश्तकारों को, पाकिस्तान के जो है वो जिम्मेदारों को जो है वो उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा, पाकिस्तान की ज़मीनों को सैराब करेगा। और वो मंगला से भी और वो तरबेला से भी बड़ा डैम बन रहा है और इंशाल्लाह वो उसके लिए हमने अभी 100 अरब रुपया खर्च करके उसकी ज़मीन खरीदी है। उसके लिए अब काम शुरू किया जा रहा है और उस बहुत बड़ा मंसूबा है, वक्त तो लगेगा, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मुस्तकबिल की प्लानिंग है या नहीं है। ये मुस्तकबिल के मंसूबे हैं और कोई ये नहीं देखें कि हम अपना ये कह रहे हैं कि हम वही करें कि जो हमारे होते हुए नज़र आए। हम तो आज यानी कि अगर भाषा मंसूबे की अगर आज बात कर रहे हैं तो भाषा के मंसूबा जो है वो तो आज से 10 साल के बाद मुकम्मल होगा। हमने अपने लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है कि पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को किन चीज़ों की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर बिजली को सस्ती कैसे किया जाए, पाकिस्तान के आने वाले 20 सालों में कितनी बिजली की पैदावार होनी चाहिए। तो ये सब ये तो दो इन सेक्टर्स की बात है। मैं सोशल सेक्टर्स की भी बात करता हूँ, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके लिए भी हमारी एक भरपूर प्लानिंग है जो कि इंशाल्लाह इसी साल के दौरान हम उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वसाइल कम है, कोई शक नहीं है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की, और लेकिन वसाइल में भी अल्लाह के फजल करम से इजाफा हुआ है पिछले 3-3.5 सालों में, और उन वसाइल को हम इस वक्त इन मंसूबों पे खर्च कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बैठे हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जनाब चेयरमैन, तो वो जानते हैं कि ये सारे जो मंसूबों की मैं बात करूँ, ख़ास सिर्फ रोड सेक्टर में, सिर्फ कम्युनिकेशन सेक्टर में 1000 जो है वो बिलियन रुपया, 1000 बिलियन रुपया जो है वो इन मंसूबों पे हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त खर्च कर रही है, 1000 बिलियन। और मैं आपको बताता हूँ कि सड़क सबसे पहला जीना होता है तरक्की का। अगर सड़क होगी तो फिर हस्पताल भी बनेगा, सड़क होगी तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बनेगी, सड़क होगी तो इंडस्ट्री भी लगेगी, सड़क होगी तो किसानों का प्रोड्यूस है जो वो मार्केट्स के अंदर भी पहुंचेगा, सड़क होगी तो मजदूरों को, काश्तकारों को रोजगार मिलेगा, और सड़क होगी तो लोग करीब आएंगे, जैसे मैंने पहले आपको भी कहा है। तो इस सड़क जो है उसका बुनियादी किरदार है तरक्की में। जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, सबसे पहले उन्होंने फोकस किया है सड़कों पे, हाईवेज पे, मोटरवेज पे, जो कि हमारी 90s की जो है वो विजन था हमारा 1990 से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसी वक्त मैं इन लाइंस पे काम कर रहा था कि सिर्फ पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे नहीं बननी चाहिए, ये आगे कराची जाना है, इसने गवादर जाना है, इसने पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचना है। और अगर वो तसलसल जारी रहता तो आज यानी कि जगह जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटरवेज बन चुकी होती। लेकिन क्या वजह है कि काम वहीं कि लाहौर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। इन चीज़ों को आपको भी सोचना चाहिए और ना बढ़ाया गया। फिर ऐसी भी यहाँ पर ऐसे भी दौर आए हैं जबकि यहाँ बिजली नापैद हो गई। भाई इसका हिसाब किताब ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये सवालात पूछने चाहिए कि क्यों इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया कि यहाँ बिजली तक जो है वो लोगों को नहीं मिलती रही। और आज ना सिर्फ बिजली माशाल्लाह आ रही है, बिजली के रेट्स भी कम हो रहे हैं। अब जो हम जो इस कोयले से बिजली बनाएंगे, कोयले से जो बिजली बनेगी उसकी कीमत भी कम होगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी,
हमारा एग्रीकल्चर चलेगा, हमारे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कम सस्ती होगी, हमारे लोगों को कम कीमतों पे चीज़ें जो है दस्तयाब होंगी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में कम्पीट कर पाएगा, पाकिस्तान के अंदर मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी अगर बिजली के रेट्स कम होंगे। अगर बिजली के रेट्स ज़्यादा हैं, खुदा न खास्ता जैसे कि बहुत ज़्यादा थे जब हम आए हैं और हमने उसमें काफ़ी कमी हम लेके आए हैं, अगर रेट ज़्यादा होते तो फिर कहाँ की कंपटीशन और कहाँ का हम मुकाबला कर सकते हैं। आज अल्लाह के फजल करम से बिजली इंडस्ट्री में सनतों के लिए 100% बिजली मुहैया की जा रही है, कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, 1 घंटे की भी लोड शेडिंग नहीं होती, और गैस भी मिल रही है, बिजली भी मिल रही है, घरेलू सार्फिन को भी इंशाल्लाह मिलेगी और उसमें भी इंशाल्लाह कोई जो है वो तातुल नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम इन चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं। धरनों वरनों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास जो है ना वो ये अपना जो वो करते रहे धरने, हम इंशाल्लाह अपने काम को करते रहेंगे, लोगों को पता लगता रहेगा कौन धरने वाले ही हैं सिर्फ और कौन तरक्की वाले हैं। तो हम तो समझते हैं कि हमारा एजेंडा है तरक्की, हमारा एजेंडा है खुशहाली, और इसमें इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इसमें आओ इसमें आके हमारा मुकाबला करो, कहो कि जनाब इसमें हम आपका मुकाबला करते हैं, पर इंशाल्लाह देखें फिर लोग पाकिस्तान के जो है वो उसका फैसला करेंगे। लेकिन धरनों और इन चीज़ों का तो फैसला लोग पहले कर चुके हुए हैं, और लोग जानते हैं कि कौन काम करते हैं और कौन जो है वो अपना इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं बड़े अच्छे काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी माशाल्लाह जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है, मुराद अली शाह साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। थर के अंदर अब जो हमारी कोयले की कान है, और जो उस पे अब काम जो हो रहा है, उस कान से कोयला हासिल किया जा रहा है, कोयला हासिल करके हम वहीं पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, बिजली के कारखाने लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और जो मैंने अभी आपको कहा कि बिजली इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सस्ती होगी, मुझे थर से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह थर के कोयले से जो बिजली बनेगी वो बहुत ही मुनासिब रेट्स के ऊपर बिजली बनेगी, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, उसका बहुत फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को पहुँचेगा, सिंध को पहुँचेगा, उसका फ़ायदा बाकी पाकिस्तान को पहुँचेगा। ये बहुत खुशी की बात है। और ये काम जो है ये आज जब से पाकिस्तान बना, आज 70 साल के बाद पहली दफ़ा ये काम शुरू हो रहा है, जो कि किसी भी एक अजूबे से कम नहीं है। और इसके लिए मैं जितनी भी आपको मुबारकबाद दूं, और सिंध को भी मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देना चाहता हूं, और ख़ुद जो है वो पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये इंशाल्लाह बिजली के कारखाने जो लगने शुरू हो गए हैं, ये इंशाल्लाह चंद सालों में मुकम्मल हो जाएंगे, 2-3 सालों में, और फिर इंशाल्लाह इससे पूरा जो है वो पाकिस्तान को एक नई बिजली इंशाल्लाह मिलनी शुरू होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जब ये मोटरवे बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त M9 मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे। इसके 75% जो हिस्सा कंप्लीट हुआ उसकी तामीर का। उन्होंने कहा कि तामीर वतन के सफ़र में एक और संग मील आज अबूर हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मंजिल तक पहुँचना है तो रास्ते आसान बनाना होंगे, और आज कराची से हैदराबाद तक के जो मोटरवे का एक हिस्सा जो मुकम्मल हुआ उसका इफ्तिताह, और साथ ही साथ उन्होंने इस अमर का भी इआदा किया कि 14 अगस्त 2017 तक कराची हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा।